آج کے زمانے میں جب تک آپ نفرت اور بدتمیزی کا جواب ان کے لیول پہ جا کے نہیں نہ دو گے، لوگ باز نہیں آتے۔ جس نسل کا کتا انہوں نے منہ کو باندھا ہوتا ہے نا، اسی نسل کا کتا باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہی لوگ ایک سٹیپ پیچھے ہٹتے ہیں، نہیں تو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ وہ پہلے زمانے تھے جب کہا جاتا تھا کہ اگر نفرت ہے تو نفرت کا جواب محبت سے دو گے نا تو ہمیشہ محبت کی جیت ہوتی ہے۔ وہ لوگ پرانے تھے، وہ زمانے پرانے تھے۔ آج کے زمانے میں جس لیول کی کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، جب تک آپ اس کے لیول پہ جا کے اس کو جواب نہیں نہ دو گے، لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ کاٹنے کے ارادے سے نہ تو کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے اور نہ ہی سسرال میں اس ارادے سے کوئی بھی آتی ہے یا شوہر کے گھر میں کہ میں نے سب کو کاٹ دینا ہے۔ مجبور کر دیا جاتا ہے، اس حد تک مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمیز ہر چیز پھر سائڈ پہ رکھ کے اس کو بھی اس لیول پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو بہنیں نہیں جاتی، جو یہ سوچتی ہیں کہ کوئی نہیں، ان کی نفرت کا جواب میں محبت سے دوں گی، تو ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی زندگی کے 10-15 سال پھر کہیں بھی نہیں گئے۔ ہو سکتا ہے 10-15 سال آپ مسلسل محبت کرو، آپ جھکتی رہو، آپ ان کی ہر بدتمیزی برداشت کرو، ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی محبت جیت جائے۔ پھر یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ 10-15 سال بعد آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ سے وقت گزر جائے اور پچھتاوے کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ بچے، اپنی قدر کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں کہ آنے والی کوئی بھی رکاوٹ آپ کی زندگی میں جو آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے، جو آپ کے رشتوں میں رکاوٹ لوگ بن رہے ہیں، آپ نے ان کو کس طرح روکنا ہے، کس طرح ان کو ان کی حد بتانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی باتیں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو پر آ چکے تو مکمل ساتھ دینا ہے۔ آج کی ویڈیو تمام بہنوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کی شادی ہونے والی ہے، جن کو 10-15 سال ہو گئے۔ اچھا، میری اکثر ویڈیو میں سسرال یا شوہر کا گھر کیوں ذکر ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ باقی کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی آفس میں چند سال، اگر لوگ اچھے نہیں، ماحول اچھا نہیں، تو انسان سکپ کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی کے ساتھ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس ویڈیو کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اچھائی کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے یا آپ نے لوگوں کو ہمیشہ کاٹتے رہنا ہے۔ اس ویڈیو کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ آپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کی ویلیو کو نہیں سمجھ رہے، آپ نے ان کو کس طرح ٹکر دینی ہے، آپ نے ان کو کس طرح جواب دینا ہے، آپ نے اپنی قدر، اپنی پہچان کے لیے آپ نے کیا سٹیپ لینے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی ہے، میری روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو بھی بہنیں میرے چینل پہ نیو ہوئی، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکے، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکے اور ان کا کوئی بہترین حل نکال سکیں۔ آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ہے میری تمام بہنوں کے لیے، کیونکہ اپنے لیے سٹینڈ لینا، اپنے حق کے لیے بولنا، کبھی بھی اپنے حق پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، میں ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جاتی ہوں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو آپ کی ذرا سی بھی قدر نہیں ہے۔ ایسے سیلفش لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے کچھ اصول بنانے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کا استعمال نہ کر سکے، کوئی بھی آپ کو کمتر نہ سمجھ سکے، کوئی بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں رشتوں سے نفرت ہرگز نہیں بتا رہی، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ جو آپ کا اپنا ہے، جو آپ کا کرتا ہے، دل سے واقعہ میں آپ کا اپنا ہے، جس کو واقعہ میں آپ کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کے ساتھ دل سے کریں۔ اور جن لوگوں کو نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ کرنے کے لیے یا خود کو ضائع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کوئی تک ہی نہیں بنتا، یقین کریں۔ سب سے پہلا اصول اپنی زندگی کا، اپنے آرام کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ کو نو کہنا آنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہو آپ کی مرضی ہے تو آپ نے ان لوگوں کے بیچ میں جا کے بیٹھنا ہے، آپ کی مرضی ہے آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے آپ نے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کا نہیں دل کر رہا تو آپ کو نو کہنا آنا چاہیے۔ دیکھیں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، اور جب کوئی بھی کام آپ مجبوری میں کرتے ہو نا، تو یہی سمجھ لیں کہ آپ اپنے اپوزٹ جا رہے ہوتے ہو، آپ اپنی مخالفت کر کے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہو۔ اور جب آپ اپنے دل کے خلاف ہو کے کوئی بھی کام کرتے ہو نا، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں یا لوگوں سے ڈر کے، تو وہ چیزیں آپ کو تھکا دیتی ہیں، آپ کو بیمار کرتی ہیں۔ تو ہمیشہ آپ کو نو کہنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کچھ لوگ آپ کے گھر میں ایسے ہیں کہ اگر آپ پاس جا کے بیٹھتی ہیں تو وہ منہ بنا لیتے ہیں، وہ چپ کر جاتے ہیں یا ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، کبھی بھی ان لوگوں کے پاس نہ جا کے بیٹھے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں نا، میری شادی کے نا کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ ہوا ایسا کہ میں نے نا کچھ لوگوں کو محسوس کیا، نوٹ کیا کہ میرے بیٹھنے سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔
अच्छा, अब मैं वहाँ से इग्नोर करना शुरू हो गई उन लोगों को, मैं अपने रूम की हद तक मैंने कहा ठीक है भई, जैसे आप खुश मैं भी खुश। मेरे शौहर तक बात गई, उन्होंने कहा कि ठीक है कि तुम सबके पास क्यों नहीं जाके बैठती? मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊँगी आपके साथ, बिल्कुल जाऊँगी, जैसा आप कहते हैं मैं करूँगी। लेकिन आपने है ना महसूस करना है, आपने नोट करना है कि कुछ लोगों के रवैये आपने देखने हैं, कुछ लोगों के तर्ज़ आपने नोट करने हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि आपके डर की वजह से या आपके लिहाज़ में वो चीज़ें ज़्यादा ना हों, लेकिन आपने नोट करनी है और फिर आपने सोचना है इस चीज़ को लेके कि आपकी गैर मौजूदगी में वही चीज़ें कितनी होती होंगी। अच्छा, चले गए, बैठे, नोट किया सारा कुछ, कहते हाँ, मैंने भी सबा फ़ील किया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस तरह। मैंने कहा आप खुद देखें कि जो लोग आपकी मौजूदगी में नहीं लिहाज़ कर सके आपका, वो आपकी गैर मौजूदगी में किस हद तक जाते होंगे। उन्होंने कहा आज के बाद मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुमने इसके पास बैठना है, उसके पास नहीं बैठना, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारा दिल करेगा तो बैठना, तुम्हारा दिल करेगा तो ना बैठना। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप मुझे आके कमेंट में ये चीज़ कहो ना कि सिस्टर अगर शौहर ना साथ दे, देखिए उसको भी दिखाने की ज़रूरत होती है। शौहर जो है ना वो मोस्टली आँखों से नहीं देखते, वो कानों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उनका सारा काम जो है ना वो कानों की हद तक होता है। तो उनको बताने की ज़रूरत होती है, उनको समझाने की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैं उसको साथ लेके गई ना कि ठीक है आप बैठो, मैं आपकी मौजूदगी में जाती हूँ, लेकिन आपने नोट करना है, बातों में नहीं लगे रहना आपने, आप महसूस कीजिएगा वहाँ पे। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, चाहे वो आपके मेके में हों या आपके ससुराल में हों, वो किसी एक के साथ है ना दोस्ती के चक्कर में, किसी एक की नज़र में अच्छा बनने के चक्कर में दूसरे इंसान को इग्नोर कर रहे होते हैं। ससुराल में मोस्टली ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों के लिए चाय बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों को खाने पेश करने की। जिनके हैं, जिनके साथ वो बिल्कुल जिनके सामने वो अच्छा बनना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग खिदमत करें, आप अपने कमरे में आएँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई बोले, तो या तो कोई बहाना बना दें या फिर इतना करें कि चाय बना के किचन में रख दें, ठीक है, आप लोग खुद ले जाएँ, मैंने नहीं लेके जाना। अपनी ज़िंदगी का एक असूल बना लें कि आपने कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। इससे क्या होगा कि आपको सामने वाले की चालाकी की, सामने वाले की सोच की समझ आ जाएगी कि ये बंदा कितने के लेवल का, कितने के पानी में है। जब आप ज़्यादा बोलते हो और कम सुनते हो ना, इससे क्या होता है कि आप सामने वाले के सामने अपनी सारी कमज़ोरियाँ रख रहे होते हो। पता चल जाता होता है बातों-बातों में। मैं तो यकीन करें कि कोई 5 मिनट बैठ के मुझसे गुफ्तगू करे तो मुझे उस बंदी की समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर के लोगों के साथ करनी है, आपने अपने शौहर के साथ भी यही रखना है, असूल रखना है कि आपने उसको ज़्यादा बोलने का मौका देना, उसके घर की बातें, उसके बाहर की बातें, ये वो। आप ये नहीं है कि वो चुप करके बैठे हुए हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो और आप मुसलसल बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो और आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा आपको सुनना भी चाहता है कि नहीं सुनना। इस तरह क्या होता है कि आपकी वैल्यू कम हो रही होती है। जब आप कभी-कभी बोलोगे ना, कम बोलोगे, तो सामने वाला अपनी पूरी तवज्जो के साथ आपकी बात सुनेगा। अक्सर जो बहनें ये कहती है ना कि मेरा शौहर तो बहुत कम बोलता है, अभी मैं ही सिर्फ बोलती रहती हूँ, वो मेरी बातों का जवाब भी नहीं देता। वो इसी वजह से क्योंकि आप उसको बोलने का मौका ही नहीं देते। आप यही नहीं देखते कि सामने वाले की क्या सोच है, वो क्या कहना क्या चाहता है। जब आप कम बोलोगे ना, तो वो भी अपने हर काम साइड पे रख के ना आपको सुनना चाहेगा कि ठीक है, ये बंदी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रही है, अपनी बात बताना चाह रही है, मैं इसको सुनूँ कि ये क्या कहना चाह रही है। अगर मैंने इसको ठीक से ना सुना, इसकी तरफ ना तवज्जो दी, तो ये चुप कर जाएगी, इसने जो बात कहनी है वो नहीं कहेगी। आपने किसी बुजुर्ग की ये कहावत तो ये सुनी होगी ना कि तुम बताओ तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तो यही चीज़ है, अपनी ज़िंदगी से ये आंटियों को, ये नेगेटिव औरतों को, जिनका मकसद उस घर की बेटी की बात कर ली, उसकी बेटी की बात कर ली, उसकी बेटी की, यकीन करें, एक हर चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो औरत आके आपके पास किसी की भी बेटी की, बहन की, बहू की बात कर सकती है ना, तो उसको हरगिज़ अपना ना समझें। ये ना समझें कि ये आप पता नहीं आप में क्या है कि ये आपके पास आके सबके खिलाफ बातें जो जितनी भी है ना आपसे ही कर रही है। नहीं भई, उसकी ये आदत है। आप में कुछ भी इतना अच्छा नहीं है। उसकी ये आदत है, उसने बैठ के कर बातें करनी ही करनी है। और हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो आपके पास बैठ के कर रही है ना बातें, या आपको फ़ोन करके घंटों आपसे बातें चुगलियाँ कर रही है ना, वो आपकी बातें भी किसी और के साथ लाज़मी करती होगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी ये दोस्तियाँ हैं ना नेगेटिव औरतों की, जिनका मकसद सिर्फ़ चुगलियाँ करना है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, घर ख़राब करने, किसी की बेटी की बात कर ली। मैं कहती हूँ मुझे हैरत होती है ऐसी औरतों पे जो किसी की भी बेटी की यूँ ही बात कर देते हैं। ऐसी औरतों को ना तो कब्र याद आती है और ना ही अपने घर की बेटियाँ याद आती हैं। तो ऐसी औरतों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। देखिए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, आप खुद देखो कि जिन्होंने 40-45 साल तक अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो
तो आगे भी उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, उनकी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है कि दूसरों के ख़िलाफ़ किस तरह बातें करनी है। आपने सोचना है कि आपका फ्यूचर किस तरफ को जा रहा है। अगर आप ऐसे लोगों से उठना बैठना अपना नहीं ख़त्म करोगे तो 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में आप भी वही करोगे जो वो कर रही हैं आपके साथ बैठ के। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपने पीछे कुत्ता मत लगाएं। अब उसका ये मतलब था कि कुछ लोग होते हैं जिनका मकसद सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ देना है। उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपना काम किस तरह करना है, उनका फ्यूचर क्या, उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। उनका ये मकसद होता है कि मैंने दूसरे इंसान को परेशान किस तरह करना है। अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट करें, ऐसे लोगों को चुप करवाएं। लेकिन अगर आपने देख लिया ना कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा चुप करने पे भी नहीं चुप हो रहे, इनका मकसद ही यही है, चाहे वो आपके साथ रहते एक छत के नीचे, चाहे आपके आस-पास हैं, चाहे आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, ऐसे लोगों को इग्नोर कर दो। ऐसे लोगों को आपने इस हद तक इग्नोर करना है कि इनका नाम लिखें एक लिस्ट पे और उसको आग लगा दें। आपकी तरफ से ये लोग मर चुके हैं। अब बहुत सारी बहनें मुझे कहेंगी कि आप ही एक ही छत के नीचे रहते हुए किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो यकीन करें आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई कर सकते हैं। सारा कुछ आपके अपने हाथ में होता है। आपने खुद को मजबूत बनाना है। आप जो चाहो वो कर सकती हो। देखें, ऐसे लोगों के लिए बार-बार रोना, बार-बार परेशान होना, बार-बार ऐसे लोगों को सफाइयाँ देना, जिनका मकसद ही सिर्फ़ आपको परेशान करना है। तो फिर आपका हक़, पूरा हक़ बनता है, आपका पूरा फ़र्ज़ है इस चीज़ पे कि आपने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, दफ़ा कर दे, इग्नोर कर दे, दफ़न कर दे ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे मैं एक कमेंट का और इंस्टाग्राम पे बार-बार जो चीज़ें आके मुझसे पूछी जाती है उसका भी जवाब देना चाहती हूँ कि अभी आप कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब आप इतना कुछ कहाँ कैसे बोल रही थी अरज़ाना आके। देखिए, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा इस चीज़ को बोला है कि मैं जब भी आपसे बात करती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि सामने मेरी बहनें बैठी हुई हैं और हम किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ये कोई फ़िल्मी बातें नहीं होती, कोई ऐसी किताबी बातें नहीं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं जो मैं आपको कहती हूँ और आप नहीं कर सकती। ये सारा कुछ आपके अपने हाथ में होता है। तो देखें, मेरे माइंड में ये चीज़ें होती है कि मैंने आज किस चीज़ पे वीडियो बनानी है, मैंने क्या बोलना है, मैं उस चीज़ को लेके आपसे बात कर लेती हूँ। कोई मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, मेरी फैमिली में कौन लोग क्या कर रहे हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, आपसे शेयर कर लेती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी आप कोई नुकसान ना उठाओ, या अपने आप को ज़ाया करने से पहले आप सीख लो, समझ जाओ इन चीज़ों को कि लोग बाज़ नहीं आएँगे। जिन लोगों का मकसद दूसरों को तकलीफ़ देना है ना, यकीन करें कि ऐसे लोगों को मुकाफ़ाते अमल से भी डर नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करें। ऐसे लोग, आपने अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ सेट करनी है, आपने अपने आप को मजबूत बनाना है। ये सारा कुछ आपके अपने हाथ में। और अगर आप एक बेटी की माँ है ना, अगर आज आप ये सारा कुछ नहीं करोगी ना, तो आपकी बेटी ने भी आपसे सीखना है सारा कुछ। फिर अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के 5 साल 10 साल ज़ाया कर रहे हो ना, तो कल को आपकी बेटी ने भी करने हैं। तो अपनी बेटी की खातिर खुद को मजबूत बनाएं कि आपकी बेटी ने आपको देख के सीखना है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।